Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Okay, so we are going to start this class, Communication Skills Class 2, BS first semester, Stats Department. Yesterday we were discussing about feedback, and that was about listening. And today we are moving towards the next topic, and that is sending messages. So it is exactly the next page and the same page where we left. There were few points which I think they are not so important, so I'm leaving. So don't worry. Come to sending messages, and I hope all of you have your notes in front of you. Uh, the the chunk of this whole discussion today is that when you are sending message, जब आप किसी को कोई पैगाम दे रहे होते हैं, तो फॉर एग्जांपल वर्बल फीडबैक है. पहले हम लिसनिंग की बात कर रहे थे, अब हम मैसेज देने की बात कर रहे हैं. तो अब जैसे ये वर्बल भी हो सकता है, ये रिटन मैसेज भी हो सकता है. तो वट एवर फॉर्म ऑफ द मैसेज यू आर डिलीवरिंग, so you have to be careful and you have to keep couple of points in your mind. तो सबसे पहली जो बात है, use verbal feedback. When you are giving feedback, and if it is possible for you, so try to give verbal feedback. There are a lot of advantages of giving verbal feedback. यानी आप अगर feedback देना चाहते हैं तो verbal feedback दीजिए, और इसके बहुत से फायदे हैं. जैसे even if non-verbal is positive and frequent, everybody needs reassurance that they are reading non-verbal communication correctly. अब देखें, for example, your teacher is teaching you, so now you are giving feedback through your facial expressions, and they are called non-verbal feedback. यानी आपका टीचर आपसे बात कर रहा है तो आप उसको फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन वो आप चेहरे के तासुरात से दे रहे हैं. आप गर्दन हिला रहे हैं, आपके चेहरे पे जो है वो खुशी का तासुर आ रहा है या अंडरस्टैंडिंग का तासुर आ रहा है. तो टीचर को आपके नॉन वर्बल से, नॉन वर्बल का मतलब होता है जो जबानी ना हो, वर्बल कहते हैं जबानी को, आपकी जबान से. तो आपके नॉन वर्बल से टीचर को समझ तो आ रहा है कि आपको समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी ये बहुत बेहतर होगा कि अगर आप अपने टीचर को अपनी जबान से भी कह देते हैं कि यस सर, आई एम अंडरस्टैंडिंग. सो दिस वर्बल फीडबैक, इट encourages and it makes very clear to the other person that you you are up to his expectations, or what he is understanding through non-verbals, the same is in your heart and he is not making mistake. ठीक है. तो everyone needs reassurance that they are reading non-verbal communication correctly. Whether a smile means you are doing great, you are doing better than most beginners, or you will catch on eventually. अच्छा, फिर ऐसा होता है कि बाज़ जो आपके जो नॉन वर्बल होते हैं, जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं, अब इस मुस्कुराहट के मुख्तलिफ मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी जबान से भी कह देंगे तो फिर आपकी जो मुस्कुराहट है उसका मीनिंग जो है वो पता चल जाएगा कि ये मीनिंग है. जैसे कोई बोल रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं, अब इसका ये भी मतलब है कि जी मुझे समझ आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, और इसका ये भी मतलब है कि मजा नहीं आया, अभी आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है. तो अब अगर आप स्माइल करते करते साथ में ये भी कह देते हैं कि रियली यू आर डूइंग ग्रेट, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, तो अब जो है वो बात पक्की हो जाएगी. तो द फर्स्ट पॉइंट इज के गिव वर्बल फीडबैक. योर वर्बल फीडबैक is many times better than your non-verbal feedback because of many reasons. Second point है, focus feedback on behavior rather than on personality. यानी जब आप फीडबैक दे रहे हैं तो आप सामने वाले की पर्सनैलिटी जो है,
जब आप फीडबैक दे रहे हैं तो आप सामने वाले की पर्सनैलिटी पे फोकस ना करें, उसके बिहेवियर पर फोकस करें, और हम इसको कल डिस्कस भी कर चुके हैं किसी हद तक. It is better to comment on specific behavior than to characterize a pattern of behavior. For example, instead of calling a colleague inefficient, specify your complaint. अच्छा, ये एक बहुत खूबसूरत बात है. एक ये होता है कि किसी आदमी ने गलती की है एक दफा और आप उसके बारे में एक जनरल स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये हमेशा ऐसे करता है. You assigned a task to somebody and he was unable to complete that task on time. Now you can't say, or you must not say that he is lazy always. He is a lazy person. You can complain for this one particular situation that this time he was unable to perform according to my expectations. यानी अगर आपने किसी को काम दिया है और वो काम उसने टाइम पर नहीं किया, तो अब आप जो अपना फीडबैक देंगे उसकी दो सूरतें. एक तो ये सूरत है कि आप कहें कि भाई ये जो आदमी है ना, ये है ही लेजी, ये काम ही ऐसे करता है. अब ये हो गया उसके पूरे बिहेवियर पर हमेशा के लिए एक जनरल स्टेटमेंट आपने दे दी कि बंदा ही ऐसा है. और एक ये है कि आप ये कहें कि यार मुझे ना इससे शिकायत है, मैंने इसको एक काम दिया इस दफा तो ये टाइम पर नहीं कर सका. अब ये आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, उसकी पूरी जिंदगी या उसके हमेशा के बिहेवियर पर आप क्रिटिसाइज नहीं कर रहे. बिकॉज इट इज पॉसिबल दैट ही वाज लेजी ओनली दिस टाइम. ही इज नॉट लेजी परमानेंट लेजी. वो एक मुस्तकिल लेजी आदमी नहीं है, उससे इस दफा ऐसा हो गया. तो फिर आप इस हेडिंग को पढ़ लीजिए कि फोकस फीडबैक ऑन बिहेवियर रादर देन ऑन पर्सनैलिटी. और इसकी एक्सप्लेनेशन है, इट इज बेटर टू कमेंट ऑन अ स्पेसिफिक बिहेवियर देन टू कैरेक्टराइज अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर. एक है उसके एक स्पेसिफिक बिहेवियर पर, एक जो चीज है उस पर आप कमेंट्स करें. एनीवेज, सो moving ahead, focus feedback on description rather than judgment. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूं. यू आर CR ऑफ योर क्लास एंड टू पीपल दे फॉट इन क्लास. दो लोगों की क्लास में लड़ाई होगी. यू आर CR and being CR you are called in principal office. Now your principal or your headmaster, whatever, he wants you to tell what happened inside the class. उसने अब आपसे ये कहा है कि ये बताओ क्लास में हुआ क्या. ठीक है, अब उसने आपसे पूछा है what happened, हुआ क्या. आपसे ये नहीं पूछा कि what is your judgment, तुम्हारी जजमेंट क्या है. देखें, अगर आपसे पूछा कि what happened तो आप बताएंगे कि Mr. A stood up and he hit Mr. B and Mr. B fell on ground and he started bleeding. एक लड़का उठा, उसने दूसरे को मारा और जो दूसरा लड़का था वो गिरा, उसका खून बहना शुरू हो गया. ये हो गया what happened. लेकिन आपसे पूछा गया कि what happened, लेकिन आपने अपनी जजमेंट दी. सर ये जो मिस्टर ए है ना ये बहुत बुरा है, ये आप जजमेंट दे रहे हैं. ये उठा है और इसने उठते साथ जो है ना मिस्टर बी बेचारे को मारा है और वो बेचारा गिर गया है और उसका खून बहना शुरू हो गया है और ये ए ने बहुत ज्यादती की है. अब ये आप अपनी जजमेंट दे रहे हैं. You were not asked to give your judgment. You were not asked to evaluate the situation. You were asked what happened. तो अब फीडबैक में भी आपको ख्याल रखना होता है कि sometimes you are only asked to tell what happened. You are not asked what is your judgment, what is your evaluation. तो आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आपकी जजमेंट क्या थी, आपकी इवेल्युएशन क्या थी. You just need to tell what happened. Description tells what happened. Judgment evaluates what happened. ये दो जुमले काम के हैं. Description
किसी चीज को बयान करना। तो डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि क्या हुआ ये बताना, और जजमेंट इवेलुएट्स व्हाट हैपेंड। जो जजमेंट होती है इसका मतलब ये होता है कि अपना तज्जिया पेश करना, जो कुछ हुआ है उस पर अपना तज्जिया पेश करना। ठीक है। अब ऐसा होगा कि आपके सामने फॉर एग्जांपल किसी ने एक रिपोर्ट बनी हुई आपको दी गई। अब ये जो यहाँ पे एग्जांपल लिखी है उसको समझिए। किसी आदमी ने एक रिपोर्ट लिखी है एंड Javeria Asib, you have raised your hand. You really want to ask something? If not, then lower your hand. अच्छा जी. Otherwise, I'll come to you later on. तो अब एक रिपोर्ट लिखी गई, आपके बॉस ने कहा कि इस रिपोर्ट को पढ़ो और इस रिपोर्ट को पढ़कर मुझे बताओ। तो अब आप उसके बारे में जब आप वो देंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग बताएंगे, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपने बड़े इस तरह से अल्फाज को यूज करना है कि जिससे एक तो आप सिर्फ एक वक्त के लिए स्टेटमेंट दें, जैसा हमने इससे पहले पढ़ा था, जनरल स्टेटमेंट नहीं देते। और दूसरा यह है कि आप इस रिपोर्ट में क्या हुआ है ये बताएंगे। आपसे आपकी जजमेंट नहीं मांगी गई, इवेल्युएशन नहीं मांगी गई, तो आप इवेल्युएशन नहीं देंगे। जैसे अगर आपने ये कह दिया दिस इज अ लाउजी रिपोर्ट, ये एक बड़ी गरीब सी थकी हुई रिपोर्ट है, अब ये हो गई आपकी जजमेंट। लेकिन अगर आप ये कहेंगे द रिपोर्ट सीम्स टू हैव अ लॉट ऑफ ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो ये बेहतर होगा कि आपने स्पेसिफाई कर दिया कि इसमें क्या क्या इशू है, और वो इश्यूज नजर आ रहे हैं, आपकी अपनी जजमेंट नहीं है वो, कि इसमें बहुत से ग्रामर के इश्यूज हैं और इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। इसी तरीके से द रिपोर्ट डज नॉट फोकस ऑन द इंफॉर्मेशन दैट आई थिंक नीड्स एम्फेसिस। यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो मिसिंग है और वो उस इंफॉर्मेशन को होकर उस पर फोकस करना चाहिए। तो दिस इज थर्ड पॉइंट। मेक फीडबैक स्पेसिफिक रादर देन जनरल, ये वही चीज है जो ऊपर हमने अभी डिस्कस कर ली है। इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इन गिविंग फीडबैक consider the needs and abilities of the receiver. Very careful, very careful when you are giving feedback. So you have to keep in your mind के who you are talking to, आप किससे बात कर रहे हैं, उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो क्या है, और वो चीजों को किस हद तक रिसीव करके समझ सकता है। Give the amount of information the receiver can use and focus feedback on the activities the receiver has control over. It is fruitless to criticize the level of activity. It is fruitless to criticize the level of activity if the decision to grant the necessary monies for material, personal, or technological is made at a different level. Okay. So first of all, when you are giving feedback, is there any issue? Somebody was trying to say something. Okay. Give amount of information the receiver can use and focus feedback on activities the receiver has control over. अच्छा देखें, you have a complaint about, for example, DC, जो जिले का DC है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, आपको उससे कंप्लेन है। अब आपने एक क्या कहते हैं अपना, किसी सड़क साफ करने वाले
आदमी को रोका, वो गवर्नमेंट का मुलाजिम है लेकिन वो जैसे रोड साफ करता है, और आपने जो कंप्लेंट डीसी को करनी थी वो आपने इससे कर दी कि यार ये मसला है, ये मसला। अब बताओ ये गरीब क्या है, इसकी क्या हैसियत है? ये जो आप फीडबैक दे रहे हैं, ये उस फीडबैक को समझने की सलाहियत नहीं रखेगा, नंबर एक। नंबर दो, इसके हाथ में कुछ नहीं है, सारे इख्तियारात, होल अथॉरिटी इज इन द हैंड्स ऑफ डीसी। So now when you are giving feedback, so you have to understand that the person you are speaking to, does he have any control over affairs? You getting me? तो आपको ये देखना होगा कि आप जिसको फीडबैक दे रहे हैं क्या उसका कंट्रोल है चीजों पर। चेक टू सी इफ द रिसीवर हर्ड व्हाट यू मेंट टू से। हाँ, ये भी एक अहम बात है, द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, कि आप जो है वो फीडबैक दे रहे हैं लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसने वो बात सुनी भी है या नहीं सुनी है। अब जैसे मैं आपके साथ यहाँ बातें कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं टाइम एंड अगेन चेक करता हूँ, आपको बुलाता हूँ, आपका फीडबैक लेता हूँ, ये देखने के लिए कि मेरी आवाज पहुंच रही है, एंड यू पीपल आर रियली विद मी, यू आर इन क्लास, you are understanding me or not. Okay, so if the information is important enough to send, make sure the person understands it. अगर आपकी इंफॉर्मेशन अहम है तो आप इस बात का जरूर ख्याल रखें कि सामने वाले ने समझा भी है या नहीं। One way of doing this is to say, I am wondering if I said that clearly enough. एक तरीका ये होता है कि आप उससे पूछें कि यार मेरी बात आपको समझ आ गई, मेरी बात क्लियर थी? तो वो सामने वाला कहता है जी जी सर हमें समझ आ गई। और आप ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड मी टू से, आपने मुझे समझा, अच्छा बताओ मैंने क्या कहा है। तो इस तरह से जो है आप क्लेरिफिकेशन ले लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स all about today's lesson.